Hello, good morning friends. Today we will start a new topic, that is optical instruments. Optical instruments, right? So the first basic instrument if we talk about is our eye. Human eye, you could say. Right? In eye what we have? A small jelly-like material acting as a convex lens, and this part is known as retina. This is the lens. It is made up of jelly like instrument, right? Retina, it acts as a screen. As we have a convex lens here, small convex lens, and its focal length is 2 to 2.5 centimeter. Remember, focal length of eye lens 2 to 2.5 centimeter only. So when a light ray comes from infinity, what happens? It simply forms the image at retina. You could see, if it is like that, it means it is a correct eye, right? No disorder is there. Remember, but what we have a convex lens, so we will form an inverted image most of the time. So what happens? It means that retina, the object which we are seeing, are inverted one, right? From here only, you could say tissue like cone and rod, right? These tissue passes on the signal to human brain. Optical nerve, so you could say optical nerve itself, this cone and rod, right? So far as cone is concerned, it is for the what? Color detection. And this rod is for intensity of light. So they pass on the signal to the human brain, and human brain images it as an erect object, right? What sort of the problem we can have in the human eye, we have read in class 10. Generally two defects are there. First one is short-sightedness. It itself is saying short-sightedness means if a human eye can see the object, nearby object clearly, but fails to see the distant object, then we say that this eye is short-sightedness. Suffering from that, its technical name is myopia. So what will happen in this? If I am having the lens, parallel lines are coming from infinity, and this is the retina. It means it forms the image in front of the retina. Most of the time we do ask, draw the ray diagram. बनना चाहिए था यहाँ, बन यहाँ रहा है इमेज, राइट?
यहाँ से रॉड एंड कोन उसको ले जाएंगे और ब्रेन में ले जाएंगे, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। When the image formed by the lens, eye lens, is in front of the retina, then it is said to be short-sightedness or myopia, right? Now, how to correct it? So, what is happening? It is getting close. So, for that purpose, what we apply? A concave lens. What that concave lens will do? Look, this is the eye lens, the human eye. We apply a concave lens. So what happens when parallel line passes through the concave lens? Its property is that it simply spread it out, and with the help of that, exact image is formed at the retina. Remember, what we have used? Concave lens, right? To minimize myopia, the short-sightedness, right? And second one is what? Long-sightedness कह दीजिएगा या फार साइटेडनेस कह दीजिएगा। राइट, ये डिफेक्ट ऑफ आई हैं। द लॉन्ग या फार साइटेडनेस खुद ही बोल रहा है, फार मीन्स दूर, साइटेड मीन्स दिखना, अच्छी तरह से दिखना। इफ़ ए ह्यूमन आई कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट clearly but fails to see the nearby object, then it is known as far-sightedness, and its technical name is hypermetropia. ठीक है, खुद ही देख लो, जिसकी स्पेलिंग बड़ी है वो फार साइटेडनेस, जिसकी स्पेलिंग छोटी है वो मायोपिया, वो उसके लिए राइट, वो शॉर्ट साइटेडनेस के लिए हो जाएगा। अब लॉन्ग साइटेडनेस में प्रॉब्लम क्या है भैया? जैसे उस केस में क्या था, इमेज रेटिना से पहले बन रही थी, यहाँ इमेज रेटिना के पीछे चले जाती है, राइट? कैसे? ये हो गया आपका ह्यूमन आई, लाइट से गई, इमेज यहाँ बन रही, पीछे रेटिना से दूर बन रही है इमेज, राइट? यदि इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है कि इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, देन इट इज नोन एज hypermetropia. Now question arises, how to resolve it, how to minimize it, which lens will bring it closer? That is convex lens. In myopia we use concave, here we will use what? A convex lens. Look, then what will be the situation? We are using a convex lens outside human eye. Light coming from the infinity, and this is the eye lens, retina. It simply bends it a smaller value like this. When it bends, it exactly forms the image at retina, right? This is the corrected eye. क्योंकि वो इतना नहीं, छोटा नहीं पूछता है, वो 12th लेवल पे पूछेगा, लेकिन उसको पता चले टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है। क्या हम कहते हैं जी दूर का दिख रहा, नज़दीक का नहीं दिख रहा, तो वो तो बहुत छोटी बात है। तो ये एक्चुअल फॉर्मेशन है। पहला डिफेक्ट है क्या? शॉर्ट साइटेडनेस, मीन्स इफ ए पर्सन कैन सी द नियर अबाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट फेल्स टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मेरे ख्याल से डेफिनेशन लिखाने की ज़रूरत नहीं है। Then it is known as short sightedness.
right? And its technical name is, we call it myopia. Eye is myopic eye. If the image is formed in front of retina, that is myopic eye. And in long sightedness or far sightedness, right, what happens? The image is formed behind the retina. Retina acts as a screen. So behind the retina, right? In order to minimize it, we use a convex lens, right? With the help of which we can bring the image at retina, right? This is the defected eye. This is correct eye. Defected eye and correct eye. Two basic defects of eye. Power of a lens. What is the power of the lens? In class 10th you have read, power of the lens is the reciprocal of its focal length, that is in meter. But if the focal length is in centimeter, it is always 100 by f in cm, right? We use this formula maximum time, but if it is given in meter, it is 1 upon f, right? So the power of lens is the reciprocal of its focal length. Now look, suppose I am having a lens of plus 20 centimeter. What will be its power? So remember, when it is plus, it means convex lens. First detection will be that it is a convex lens. And to calculate the power, what we have? 100 by 20. That will give you plus 5 I am writing it here. Diopter. पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है. फिर इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन है. जैसे हम लोग दो लेंस को एक साथ रख दें इस तरह से, concave with convex, right? So in this case, if they ask what will be the power of the lens, let f1 and this is to be f2. So no need to worry about it. The combined focal length will be 1 upon f1 plus 1 upon f2, right? From that we will get f, whatever it is, and power is concerned 100 by that capital F will give you the power, right? Simplest way, nothing to worry about it, but it is always there in 1 marks question. Power of lens, combination of lens, like that. Now if the lenses are placed separately by a distance each other, this is the one lens and another lens is here. ये कितने भी लेंस लगा ले डरना नहीं है. This is L1, this is L2, or say its focal length is f1, this is f2, right? Then how to calculate the power? In that case, what will happen if any light ray comes? It will form a point image, suppose I am taking, right? Then again it will pass through this, right? And it will form an image, right? Right? What is happening? Object, image, and that image for second lens will act as an object, right? And we can find out whatever we want. So combination of focal length is concerned, up to your level it is simply 1 upon f1 by 1 upon f2, right? इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है, इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस will act as an object for the
सेकेंड आई, बस इतना समझ लो तो केस ख़त्म। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको 1/f = 1/v - 1/u से सॉल्व करो। जहाँ आता है वो एक इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, राइट। फिर वहाँ फॉर्मूला लगाओ तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल चीज़ है, कोई आफत नहीं आ रही। जहाँ आपने 1/f निकाल दिया तो p = क्या होगा 1/f, राइट। एंड यूनिट इज अगेन, इसको बार बार लिखो तब याद आएगा, डायोप्टर, ठीक है। दिस विल बी डायोप्टर। अब हम अपने असली टॉपिक पे आ जाएं तो, जिस पे हम बात करना चाह रहे थे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उस पर देखें। इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वी हैव 3 इंस्ट्रूमेंट ओनली: सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, राइट। और एक रिफ्लेक्टिंग टाइप होता है, वो बाद में दिखा देंगे उसको, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसकी, राइट। अब देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है। आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजर लोग हमेशा अपने हाथ में एक स्क्रीन से लेंस सा लिए रहते हैं, उससे हाथ की रेखाएं पढ़ते हैं। तो क्या ड्रामा है, राइट। तो सिंपल सा केस है। इन केस ऑफ convex lens, if the object is placed between optical center and the focal line, so what happens? It forms a virtual image in the same direction, right? जैसे ये है मेरे पास, इस तरह से ये इसका फोकल पॉइंट है। यदि मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दूँ, राइट, तो होगा क्या, ये लाइट जाएगी यहाँ से नीचे आएगी, राइट, और ऑप्टिकल सेंटर के, इसको याद रखना है, जहाँ तक हो सके पैरेलल करने की कोशिश करना है, राइट। यहाँ आपकी आँख, अब इसको पीछे ले जाएं तो लाइक दिस। तो इमेज कहाँ बनेगी, ये बनेगी, ये होगी इमेज आई डैश, दिस इज ओ डैश। ये सिंपल सा माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्ट को लार्ज दिखाने के लिए, साफ दिखाने के लिए, उन एस्ट्रोलॉजर के पास होता है, राइट। तो ऑब्जेक्ट भी उधर ही है, इमेज भी उधर ही फॉर्म हो रही है। रिमेंबर, इसको लिख लो इस फैक्ट को। When object is placed between optical center and the focal point, then the image is formed on the same side, but it is virtual and erect. इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो इमेज है is formed on the same side. Same side में जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, right? Which is वर्चुअल है, तो वर्चुअल लेकिन इरेक्ट है, बट इरेक्ट। बस इस चीज़ को समझ जाओ, लफड़ाई खत्म, कोई पंगा नहीं है। अब क्या करना है, सवाल ये है। तो एक मैग्नीफिकेशन होता है हमेशा, मैग्नीफिकेशन, यानी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए लेंस। सिंपल में तो बहुत आसान है, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते थे आप लोग। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज, या v/u। v is the distance of the image, v is the image distance we call it, and u is what? u is the ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। अब मैं थोड़ा सा इसमें खेल खेलूँ, ये में आ गया। तो अब क्या है मेरे पास, यहाँ m क्या है, v/u
यू मॉड लगा देते हैं जैसा जो होगा, राइट। अब v है क्या, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट d लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को बोलते हैं d अपॉन u, राइट, ये आ जाता है। अब इसको रिजॉल्व कैसे करें, फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब इसमें हम साइन कि सब उल्टी साइड ही बने हैं तो ये आ जाएगा 1/-d, ये बताता हूँ मैं आपको, -1/-u। क्यों लिया माइनस, ऑप्टिकल सेंटर के इधर थे, लेकिन लेंस कॉन्वेक्स ले इसलिए ये f रहेगा। तो अब इसको कैसे रिजॉल्व करें, इसको ऐसा कर दूँ 1/f प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/u, सिंपल सी चीज़, राइट। इनका एलसीएम लो, ft d प्लस f इज इक्वल टू 1/u। बहुत सिंपल सा खेल है, इसको समझ जाओ, बाकी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो अब हुआ क्या, आया क्या मेरे पास, d प्लस f अपॉन एफ डी। अब मेरे पास फॉर्मूला था m इज इक्वल टू d/u, राइट। तो d इंटू 1/u यदि आपकी समझ में नहीं आता तो 1/u की वैल्यू पुट करो। तो 1/u की वैल्यू क्या है, d इंटू d प्लस f अपॉन डी एफ। तो ये d से d खत्म हो गया, तो रह क्या गया मेरे पास, देखो तो d अपॉन f प्लस 1। ये खेल सीख जाओ बस, इतना कोई ट्रबल नहीं है। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस d/f, ठीक है। ये याद रखना बार बार, ये मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इस रिजल्ट को याद रखें, बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर आता है वो आ जाता है 1 प्लस d/f, ठीक है। और इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक होता है मैग्नीफाइंग पावर, जो हम अब बड़े बड़े बनाएंगे, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए लेंस, राइट। इसको भी हम m से दिखाते हैं। तो ये होता है रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट with the help of instrument अपॉन, थोड़ा सा सही रखिएगा इसको, रेशियो एंगल सबटेंडेड by the object with naked eye। लेकिन इससे बात नहीं बनती, इसमें एक कंडीशन आती है, वो कंडीशन में लिखना पड़ता है when both are considered to be at least distance of distinct object। बिना इस कंडीशन के ये डेफिनेशन पूरी नहीं होती है। एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एंगल्स फॉर्म बाय द व्हाट object with the help of naked eye, right? But this condition is
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट ओनली दीज थिंग्स। कब होगा ये? व्हेन बोथ आर कंसिडर, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे जब हम कंसिडर करेंगे तब ये आता है। ठीक है, ये तो बात हुई मैग्नीफिकेशन की। कुछ छोटी मोटी रिविजन बीच में आ रही हैं, मैं उसको दिखाता हूँ। जैसे हमने बात करी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन जिसको हम बार बार डी कह रहे हैं, है क्या ये? डी खुद ही कह रहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो हाउ विल डिफाइन इट? राइट, आई विल राइट डाउन हियर, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस between the optical sender and the image, right? या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, it is the minimum distance up to which the human eye can see the object without any stress, बिना प्रेशर लिए हुए, सिंपल, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्स पोजीशन। क्या कहलाता है? रिलैक्स पोजीशन। मतलब जहाँ हमारे आंखों पे जोर नहीं पड़ रहा है, राइट। फॉर ए करेक्ट आई, करेक्ट आई से मतलब है जिसको कोई डिफेक्ट नहीं हो। डी इज रिमेंबर 25 सेंटीमीटर। ये वो चीज़ें हैं जो बार बार उसमें ऑब्जेक्टिव में डाल देता है, वो मुझे कहता है सर आपने तो कराया नहीं। अबे बेवकूफ़ी, हम क्या कर रहे हैं? हर चीज़ को तो क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाए, मेन आता है एग्ज़ाम में। अब आ जाए अपने असली टॉपिक पे। याद रखिएगा, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में या तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप, कोई भी हमेशा ही आता है, बिना इसके नहीं होता सिस्टम, राइट। तो थोड़ा सा डायग्राम पे ध्यान देना। पहला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, थोड़ा लिखने में तकलीफ हो रही है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप खुद ही बोल रहा है, कंपाउंड मीन्स इन विच वी आर यूजिंग 2 लेंस here only, we can use 3 also, right? माइक्रो मीन्स स्मॉल और स्कोप मीन्स दिखना, राइट। एक कॉम्बिनेशन लेंस का, इस तरह का कॉम्बिनेशन जिससे हमको छोटी छोटी चीज़ें भी साफ साफ दिखाई दे। तो लिख दीजिएगा इसमें, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट in which the combination of lens is such that the tiny object can be seen in large form। दोस्तों देखो, कोई भी फालतू नहीं करना, सिंपल टॉपिक टू टॉपिक जो है उस पर बात करो, बहुत सिंपल से बन जाता है, राइट। लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस,
यहाँ हम एक छोटा लेंस लेते हैं, रिमेंबर छोटा मीन्स इतना ही छोटा। और जब हम लेंस की बात करते हैं तो जैसा मैं बना रहा हूँ वो ठीक है, आप ऐसा खाली ये कद्दू की बेल मत बनाओ, राइट। ये छोटा लेंस ले लिया, 1 मिनट। दिस इज़ L, इसकी फोकल लेंथ को बोलते हैं FE। इस लेंस का नाम है आई ऑब्जेक्टिव लेंस, FO सॉरी, ऑब्जेक्टिव लेंस। देखो मैं तोड़ के बना रहा हूँ और आप कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते, राइट। कई लोग क्या करते हैं, दोनों एक साथ बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं होता है। तो ज़बरदस्ती विद्वान नहीं बनना है। अब इसका सपोज करो ये FO है, राइट। मुझे बड़ी इमेज चाहिए तो क्या करूँगा, ये मैंने कहा था, क्या कहा था, यदि मैं एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, इस याद रखिए इस ऑब्जेक्ट, बल्कि इसको जरूरत दिखानी भी नहीं है, इस ऑब्जेक्ट को बहुत छोटा बनाना है क्योंकि माइक्रो है, तो इस तरह से दिखाना है, ज़्यादा ना स्पेस ले। फिर यहाँ देख, यहाँ से पैरेलल लाइन गई और यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से लाइन गई, बिना डरे हुए। इसमें कोई आफत आई है तो ये इमेज बन जाती है, इसको आई डैश कहते हैं, राइट। ये आपका O डैश ऑब्जेक्ट हो गया, बहुत सिंपल। अब मुझे इसको मैग्नीफाई करना है तो कैसे करूं, सिंपल सी बात है, एक लेंस और लगा दूं, बड़ा लेंस। इस तरह से दोस्तों एक बड़ा लेंस ले लिया, इसको बोलते हैं हम लोग आई लेंस या आई पीस, और आई पीस भी कहलाता है, राइट। अब क्या करना था, हमको तो इलाज करना, हमको तो बड़ा देखना है इसको। इसका मतलब जो ये आई लेंस है, इसकी फोकल लेंथ FE होती है। ये जो इमेज बन रही है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई लेंस और फोकल लेंथ के बीच बन रही है, बार बार दिमाग में रखिएगा, राइट। तब क्या होगा हमारा, वही प्रॉपर्टी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल लेंथ, व्हाट हैपन्स, इट फॉर्म एन इनलार्ज इमेज। तो एक इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, बहुत सफाई से बनाना है। दूसरा आपने ये लिया, ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे अपनी आँख बना दो, ठीक है, जैसे भी आप बनाना चाहते हैं। आई अब हमसे नहीं बन रहा है ह्यूमन आई। अब इसको पिछले चलो दो, ज़बरदस्ती भी नहीं करना, थोड़ा सा मिला देना है, राइट। यहाँ जो बनेगी वो फाइनल इमेज बनेगी, ये बनेगी वो इनलार्ज इमेज I2 I ट्रिपल डैश। क्लियर। तो कोई राम कहानी नहीं पढ़ना, किताब से नहीं पढ़ना है, वो सब बकवास करते फिर लंबा चौड़ा सिस्टम हो जाता है। सिंपल ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो याद रखो मैंने कैसे क्या किया, पहले छोटा वाला बनाया, फिर उसके रेस्पेक्ट में बड़ा वाला बनाया, राइट। ये खेल सीख गए तो चुटकी का काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्राई करो जितना हो सकता है। कोई पेंटिंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, चाहे तो अलग तोड़ के बना लो, राइट। ये छोटा लेंस है, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा, याद रखना ये ऑब्जेक्ट छोटा से छोटा होना चाहिए ताकि कट सके, अदरवाइज वो ऑप्टिकल सेंटर से नहीं काटेगा। यहाँ से ये इमेज बन गई, राइट, कोई आफत नहीं। प्लस अब क्या किया, इमेज तो मेरी उल्टी लटकी हुई थी, राइट। मुझे इसका इनलार्ज फॉर्म चाहिए, मैं ऐसा लेंस लगाऊं जिसमें ये इमेज इसके फोकल लेंथ के अंदर आ जाए। थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा इस तरह से। उसके बाद ये पैरेलल गया और ये ऑप्टिकल सेंटर से गया, इस तरह से। इसको बस अब पीछे ले आओ, कोई तकलीफ नहीं भी कट रहा, कटाओ साले को, जो है कैसे भी हो सकता है, कोई नंबर नहीं कटता इसमें, राइट। और जहाँ ये बन रहा है
ये हो फाइनल इमेज, आई डबल डैश आई ट्रिपल डैश, ये था हमारे पास आई डैश, और ये था ओ डैश आई डैश। इन दो को जोड़ के तब ये बनता है। ऐसे करके देखो, बहुत सिंपल है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, इस आपको बोलते हैं आई लेंस, राइट, याद रखिएगा। और आई पीस भी बोलते हैं, इसलिए हर टॉपिक ढंग से देखिए, कोई फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो हुआ क्या, इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम किया है कि नहीं। पहले जो इमेज बन रही थी वही इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम किया, और उसको हमने इन लास्ट फॉर्म में यहाँ दिखा दिया। तो इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल है, राइट। और उस साइड से देखा जाए तो डायरेक्ट ही एक तरह से, लेकिन इन्वर्टर लिखेंगे क्योंकि नीचे बन रहा है, उल्टा लटका रखा हमने। ठीक सर। तो इसमें मेन जो स्ट्रेस होता है वो यही होता है कि भैया रे डायग्राम ढंग से बनाओ, राइट। मैक्सिमम लोग इसमें पचड़े में पड़ जाते हैं, नहीं बना पाते। ठीक, ये जो हमने बनाई है इसमें हम लोग लिखते हैं, याद रखिएगा, when image is formed at least distance of distinct vision, ये याद रखिएगा, तब ये डायग्राम सही है, राइट। अब देखो इसी में दूसरा केस देखो, बहुत सिंपल, डरना नहीं है कहीं से भी। डर आ जाएगा तो ऑप्टिक्स नहीं होती है, और ऑप्टिक्स हमारा फॉल्ट है, आप जो करवा लो। अब इसी को देखो, तो फिर बनाता हूँ एक बार। देखो आपको आज दिन भर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके बने, नहीं तो नहीं बनेगा। ये छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया, जितना छोटा हो सकता है, ये किया, ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजारा, और ये यहाँ थोड़ा हाथ पे कंट्रोल ठीक नहीं आ रहा है, हो जाएगा एक दो दिन में, आप चिंता मत करिए। ये बना, तो इससे क्या हो गया, ये वही इमेज बन गई। ये ओ डैश था, ये आई डैश, राइट। उल्टा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ आई लिखो वहाँ लिखो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब हुआ क्या, बन तो गई, लेकिन ये इमेज यदि एग्जैक्टली इसके फोकल पॉइंट पे बन जाए दूसरे लेंस के, तब क्या होगा साहब, देखो तो इस तरह से इसके फोकल पॉइंट पे ही बन गई। अब क्या आफत आ गई, ये जाएगा, ये जाएगा, ये आ गया आपका, यहाँ आपकी आँख आ गई, राइट। तो ये कहीं नहीं मिलेगा, ये हम लोग यहाँ लिख देते हैं एट इन्फिनिटी। तो दोनों में से कोई भी रेडियोग्राम मांग सकता हो, इसमें लिख दीजिएगा व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तब ये केस है, राइट। पहले वाले केस में तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में चल रहा था, इसलिए उसको बोलते हैं रिलैक्स्ड आई, याद रखिएगा। ये वाला रिलैक्स्ड आई के नाम से भी जाना जाता है, जब आँख में स्ट्रेस ना पड़ रहा हो। तो दोस्तों ये दो डायग्राम, एक चीज़ और याद रखना यार, कई बार कुछ टीचर गड़बड़ करते हैं, रे डायग्राम में एरो नहीं दिखाते हैं, तो नंबर देने को तैयार नहीं हमको, तब हमको लड़ना पड़ता है, तब जाकर नंबर मिलता है। तो हर कोई नहीं लड़ेगा, बिकॉज वी एक्ट एज एट हेड एग्जामिनर, सो उसमें कोई कन्विक्शन नहीं होता, हम पहले से क्लियर कर देते हैं
लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम ये तीर लगाने में क्या जा रहा है, सब कुछ कर दिया। ठीक है, अब देखो इसमें खेल क्या है, ये तो बहुत सिंपल है। अब इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालना पड़ता है हमको। क्योंकि अब याद रखिएगा जहाँ तक हो सके डेरिवेशन कम हो गए हैं। इसके अंदर का जो मटेरियल है, जो वो 20 नंबर शुरू के हैं, उनका खेल है सारा। तो कहाँ से पकड़ के जब टॉपिक को बारीक से पढ़ेंगे तभी तो होगा। हमने पहले भी से आपको कहा है कि इसको जो है क्या कर दो, कैस्टिनेट कर दो, खींच दो टॉपिक को, खुला चैलेंज करो कि सब क्या पूछ सकता है, तो क्या तेरे में दम है, राइट। तब जाके वो चीज़ आती है, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। तो हमने क्या निकाला था, m = बीटा बाया अल्फा when both are considered to be at least distance। ये ज़रूर लिखना बेटा, ये कंडीशन होती है, बिना इसके ये नहीं बनता है, राइट। अब कैसे निकालें साहब बीटा और अल्फ़ा, सवाल तो ये है। देखो m = होगा क्या, एक्चुअल में ये फाइनल इमेज बनी है और ये ऑब्जेक्ट बना है। तो I /I इंटू क्या बनेगा, वो तो सिंपल हो जाएगा। ये आपका यहाँ से यहाँ तक V0 है जहाँ पे इमेज बन रहा है, और ये U0, राइट। तब क्या आएगा इसमें, ये आ गया सपोज करो हमारे पास I /I। अब क्या करूँ भाई, कैसे इसको रिजॉल्व करूँ। तो अब क्या हुआ, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। I मेरे पास फाइनल इमेज बनी है, ऑब्जेक्ट मेरे पास O' है। अब मैं ये गया दोनों को I से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो बात तो बन ही रही। लेकिन इससे क्या बन गया, इसको हम रिसेटल करें तो ये बन जाता है I / O', I I'। अब I' O' क्या कहलाएगा, MO मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, इनटू ये कहलाएगा ME द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस। खेल है, थोड़ा सा खेल सीखना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है। हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई घोटना नहीं है, रटना नहीं है। यदि मैं इसको M से दिखाऊं तो ये आ जाता है MO × ME, ठीक है। अब MO और MO क्या है, यदि मैं डिस्टेंस फॉर्म में देखूं तो VO/U, राइट। क्योंकि ये नेगेटिव में तो नेगेटिव डाल, अभी इसको जवाब में डालते हैं। अब इनटू ME क्या है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई लेंस। अब ME कितना आएगा, तो हमने पहले भी निकाला था, आपको याद हो, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या आता था ME, याद है कितना आया था, अरे भैया V/ क्या UE तो होगा, राइट। अब थोड़ा सा सॉल्व कर दें, V0/U0। अब देखो V क्या है, -D लीस्ट डिस्टेंस ऑफ रेस्टिंग विजन में बन रहा है, और ये UE आया यहाँ तक, ठीक है। मैं इसको आगे लिख दूँ, -V0/U0 × D
इंटू 1/UE। क्लियर? यू और बी में अंतर रखना, नहीं मारे जाओगे। बहुत अजीबोगरीब टीचर होता है, नहीं सर ये इतना तो जानता ही नहीं है ओ है या ए है, खुद भी नए होते हैं तो इसलिए थोड़ी ट्रबल आती है, राइट। तो बार बार सर लड़ने नहीं जाएगा, सर तो मेन टॉपिक पे बात करेगा, तो इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी है। अब ये ऐसा हो गया सर, इसको यहीं छोड़ दो, ठीक। अब बात करूँ मैं कि 1/U कहाँ UE कैसे निकालूँ, तो मेरे पास सिंपल फॉर्मूला है एज 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, क्या फ़ायदा हो जाएगा, तो मेरा तो फोकल लेंथ मेरा पॉजिटिव ही है भाई, ये आ जाएगा, ये उल्टी साइड बन रहे हैं तो ये -D बन जाएगा, माइनस 1/-UE। -UE क्यों, वही तो उल्टी साइड ही रखा है, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब तो देखो ज़रा आँख खोल के क्या मिला, 1/FE अभी तो किया था हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में, 1/D माइनस D, सॉरी, ये प्लस हो जाएगा 1/U, ठीक। अब उससे क्या होगा, देखो तो खेल है, मैं कह रहा हूँ ना बार बार, इसको मस्ती से खेलो। तो मेरे पास क्या आ गया, 1/FE इस D को उधर लिया तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/UE, राइट। इसको देखो तो D इंटू FE बाया DF, 1/U की वैल्यू आ गई, राइट। तो एलसीएम है सिंपल, D प्लस FE बाया DFE इज इक्वल टू 1/UE। अब इस वैल्यू को मैं अपने मेन रिजल्ट में पुट करूँगा, इसको इक्वेशन 3 दो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 हुआ, तो क्या मिला साहब, घबराए नहीं, इसको देख के आदमी चकरा जाता, कहता नहीं मैं तो करूँगा ही नहीं, ऐसा थोड़े काम चलेगा। V0/U0 मेरे पास पहले से था, ये नेगेटिव है, और ये क्या याद है मेरे पास, D प्लस F कौन सा, E वाला, DFE, राइट। तो साहब M इज इक्वल टू आ जाएगा -V0। तो अब क्या बना, पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ये बन जाएगा 1/, या रुको छोड़, 1/, क्यों करें हम बार बार, D से D काट देते हैं, फिर देख लें तो क्या आ जाएगा, वो D/FE + 1। तो दोस्तों ये है मैग्नीफाइंग पावर का, इस तरह से करोगे कोई घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, सिंपल आराम से निकल आएगा। आप लोग डरते हो उससे, कुछ नहीं करना, पहले एक को रिजॉल्व करो, दूसरे रिजॉल्व करो, फिर एडजस्टमेंट करो। खेल ही तो है, लेकिन ये खेल पक्का होना चाहिए। एक मैक्सिमम टाइम इसको 5 मार्क्स में बना के दे देता है, कुछ ना कुछ डाल के, तब बच्चा सोचता सर ने तो बोला ही नहीं 5 में आएगा, छोड़ के चला आता है। छोड़ना नहीं है। ये कब था, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एग्जैक्टली एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ऑप्टिक्स में याद रखिएगा, जब भी आप सवाल करें साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखिए, यदि लेफ्ट में है तो ये पॉजिटिव, राइट में बन रहा है तो नेगेटिव, इरेक्ट है और एक इन्वर्टेड है तो उसमें इन्वर्टेड वाला माइनस, रियल वाला प्लस। बड़े आसान, बताओ मुझे, ये आपके पास फॉर्मूला है, B0 दिया हुआ है, UG0 दिया हुआ है, D दी हुई है, FE दी हुआ है, तो क्या अनपढ़ हो क्या, है ना। अब सवाल क्या बन रहा है, वो सब राम कहानी नहीं सुना रहा है, वो कहता है रे डायग्राम ड्रॉ कर, मैग्नीफाइंग पावर लिख और उस पर एक न्यूमेरिकल मार दे। तो इसमें आपको जो मेरी मदद करनी है, इससे रिलेटेड ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 न्यूमेरिकल बुक से उतार, कुछ भी उतार, कहीं से उतार, लेकिन 3 न्यूमेरिकल मस्ट हो जाता है। यदि आपने ये कर दिया तो मज़ा आ जाएगा, राइट। तो डरिए नहीं और सिंपल खेल खेलिए मेरे साथ। देखो मैं क्या आराम से खेल रहा हूँ, क्योंकि तबीयत खराब है, बैठा है, मैं लगाऊँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है इसने आना है रिजल्ट ने। ये है,
और एक जब वो फाइनल वो जो था स्पेशल केस व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो उस केस में m कुछ नहीं होता था माइनस एफ ओ बाय एफ ई, राइट, ये हो जाता है। मेन है पहला वाला। अब दोस्तों दूसरा इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। कोई डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को टेलीस्कोप करना, देखना, दूर से देखना, राइट। तो लिख लो फिर भी, इट इज़ ए डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच। अब देखो इसका रे डायग्राम देखो, डरो नहीं। इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो बड़ा होता है, याद रखना, ये भी कई बार सवाल आ जाता है उसमें। तो जो बड़ा यदि ऑब्जेक्टिव लेंस है तो भैया क्या है, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी जो ऑब्जेक्ट की तरफ रखा हुआ है। अब क्या हुआ, इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, थोड़ा दिखा देते हैं कि आइडिया आ जाता है। ये आ रही है साहब इन्फिनिटी से, थोड़ा डेप्थ में रखिए नहीं तो मारे जाओगे ऐसे। अब एक आ रही है ऑप्टिकल सेंटर से, राइट, ये आ रही है, एक इमेज फॉर्म कर देगी। पहला पार्ट ये है सिंपल, कहीं कोई लफड़ा नहीं है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, और इमेज ये आ गई मेरे पास, आई डैश, हो गया साहब। तो आसान दिख रहा है, वही चीज़ें हैं, तोड़ तोड़ के बनाओ तब आइडिया आता है। बेवजह मोटी किताबों में चक्कर मत पड़ो, कभी नहीं आएगा। अब क्या होगा, इसका जो आई लेंस है वो छोटा होगा इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट। बार बार कह रहा हूँ, लेंस ऐसे मत बना देना, उसको देख के ही वो काट देते हैं, कहता है क्या बेवकूफ़ी है, क्योंकि हम लोग थिन लेंस पढ़ रहे हैं, थिक नहीं। अब क्या हो गया दोस्त, और आसान हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर एल डैश कह दो, इसका ये एल, राइट। ये इमेज फिर से कहाँ आनी चाहिए, इस आई लेंस की फोकल लेंथ के अंदर, ये बहुत ज़रूरी कंडीशन है, ठीक है। अब क्या हुआ साहब, इमेज बन गई, ये आ गया, ये आ गया। अब क्या करें, अब इन्फिनिटी से जो लाइट रे आ रही है और यहाँ इमेज बना रही है, वो इसका एफ ओ हो जाता है, फोकल लेंथ, राइट। जहाँ पे कंसंट्रेट हो रही है लाइट, वो एफ ओ हो गया। खैर मुझे इस रे डायग्राम में इसका कुछ नहीं करना है, मैंने यह करना है, एक यहाँ से सीधे लाइन लेनी है और एक ऑप्टिकल सेंटर से लेनी है, ऐसे ऐसे, राइट, और इनको पीछे मिला देना। यदि ये पीछे भी मिल रहे हैं, डरना नहीं है कि यहाँ पीछे कहाँ जा रहा है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिकल है। लेकिन जहाँ तक हो सके स्ट्रेट देखिए बस, थोड़ा सा ऐसा ना हो कि ज़बरदस्ती भेड़ दिया जी, ये यहाँ फूल गई, इसको थोड़ा पतला करो, यहाँ पे, यहाँ इमेज बन रही है। थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ क्योंकि वो लेंस पड़ रहा है वहाँ पे। यहाँ लिया हूँ, इसमें तो थोड़ा बहुत टेढ़ापन दिख भी रहा है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो ये बन गई साहब फाइनल इमेज, ये यहाँ है, तो आई डबल डैश आई ट्रिपल डैश, कोई आफत है,
ये तो उससे भी आसान है। ठीक है दोस्तों, अब फिर से वही क्या निकालोगे, मैग्नीफाइंग पावर। कुछ नहीं, फालतू नहीं पढ़ना, यहाँ से रे वहाँ से रे, कोई चक्कर नहीं, सीधा दिख रहा है इन्फिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट यहाँ बना, इसके फोकल लेंथ के अंदर था और यहाँ इमेज बना दी। राइट, ये इमेज आपकी यदि यहाँ भी बन जाती तब भी कोई डाउट ट्रबल नहीं है। फिर वही m, मैग्नीफाइंग पावर बीटा बाय अल्फा व्हेन बोथ ऑफ देम कंसीडर, ये बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट। तो इसमें क्या करेंगे, अल्फा निकालना चाहें तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। राइट, सपोज करो ये h है और कहाँ बन रहा है, FO पे। अब m क्या बनेगा मेरे पास, h अपॉन FO इंटू, सॉरी P वो पहले है, h अपॉन UE। राइट, वाया h अपॉन FO। यदि आपको सेट करें इसको तो FO अपॉन UE आ जाएगा। राइट, इन्वर्टेड होती है इसलिए इमेज नेगेटिव आती है, इसलिए माइनस लगाते हैं। अब हमको उसको रिजॉल्व करना है, तो अब देखो ये आया FO बाय, फिर वही फॉर्मूला आ गया, ये तो ले लिया हमने FO इंटू 1 अपॉन UE विद नेगेटिव साइन। राइट, फिर वही एज फॉर ए लेंस 1 अपॉन F E इज इक्वल टू 1 अपॉन V E माइनस 1 अपॉन UE। राइट, ये हो गया 1 अपॉन F E इज इक्वल टू, कहाँ बनी थी डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और उल्टे साइड बनी थी माइनस D माइनस 1 अपॉन UE। साइन कन्वेंशन का खेल है। तो इससे क्या मिल जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन UE इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D। राइट, सेम चीज़ आ गई। अब मैं इसको रखूँ वहाँ अपने फॉर्मूले में, तो m इज इक्वल टू माइनस F हो तो मेरे पास साइन, इसका इंटू क्या आ गया, FE प्लस 1 अपॉन D हो गया। डरना नहीं है, डर के खेलोगे तो कुछ नहीं होगा। क्रिकेट में वो कहते हैं गो एंड एंजॉय दैट मैच, खुल के खेलो, वही यहाँ भी है, D प्लस FE अपॉन FED। राइट, यानी माइनस FO। राइट, थोड़ा मेरे को खड़े होने में तकलीफ हो रही, वरना मैं इसको निकाल देते यहीं पे ही। फिर भी मेरे हिसाब से तो हो रहा है। अब आप बताओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब मैं इसको थोड़ा एडजस्टमेंट करूं, FE को बाहर ले लूं, तो क्या रह जाएगा साहब, D बाई डी मीन्स 1 प्लस FE बाई डी। आप जब तक इस तरह से नहीं निकालोगे याद नहीं रहेगा, वहाँ अक्सर कन्फ्यूजन रहता है D बाई FE या FE बाई डी। तो याद रखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में D ऊपर है, D बाई FE।
और एस्ट्रोनॉमिकल में FE/D। ठीक, फिर एक केस रह जाता है लास्ट। आज मुझे इसे निपटाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से सारे टॉपिक रुक जाएंगे। क्या था वो केस? व्हेन फाइनल इमेज is formed at infinity। मतलब यहाँ कटना नहीं चाहिए, इन्फिनिटी बनना था। कब बनता है इन्फिनिटी में? जब वो एग्जैक्टली जो इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव है वो एग्जैक्टली किसके फोकल लेंथ में बन जाए? आई लेंस की। ठीक है, क्योंकि आई लेंस में आपको याद होगा, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट focal length in case of convex lens the image is formed at infinity। ठीक है, तो वो बनाना तो और आसान है। ये लो साहब, बार बार याद दिला रहा हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट मैं सवाल बना रहा हूँ, मैं वो भी दूंगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा, राइट। ये इन्फिनिटी से लाइट रे आई, ये आई यहाँ से। कोई डरना नहीं है, जहाँ पे काटना काट लो, नज़दीक काटना, ज़्यादा दूर भी मत काटना, ज़रा सीधा बनाना स्केल से, मेरी तरह नहीं। ये बन गया मेरे पास इमेज आई डैश। अब ये इमेज यदि एग्जैक्टली FE पे पड़ जाए, फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस के, तब क्या होगा साहब? थोड़ा छोटा लेंस बनाते हैं, क्या हो जाएगा? ये देखो, ये गया, इसको ऐसे दिखा देना है। अब ये थोड़ा सा संभाल के, मेरे से तो नहीं समझ आ रहा है ना, आप स्केल का यूज़ करिए, ऐसे ऐसे निकाल दीजिए। अगर यहाँ अपनी आँख बना दो अच्छी सी, लेकिन आँख बनाने में टाइम ख़राब नहीं करना, ऐसे बना दे तब भी हम उसको आँख मान लेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब ये आई लेंस के फोकल लेंथ पे आ जाएगा तो ये कहीं नहीं मिलेगा, ऐसे ये इन्फिनिटी में चला जाएगा। पहला दिखाना, इन्फिनिटी को कहीं काटा के दिखा दो, ये बना दो ऐसे इन्फिनिटी। बस क्या तकलीफ है बताओ मुझे, कहाँ आफत आ रही है? अरे इस कंडीशन में F आ जाएगा -FO/FE। बेझिझक। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि टॉपिक इस तरह का है कि मैं इसको तोड़ तोड़ के नहीं कर सकता हूँ, सबको एक साथ ही करना होता है। और जो मेरे लिए आप करेंगे उसका सिर्फ रे डायग्राम, कोई कुछ नहीं है, रे डायग्राम याद रखिएगा, ये आप खुद बनाएंगे। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, तो उसमें कुछ नहीं करना है, जहाँ आई लेंस लगता है ना, वहाँ हम लोग वहाँ एक मिरर लगा देते हैं, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव तो नहीं, कॉन्वेक्स से काम चलेगा। ये आपको करना है दोस्तों, ठीक है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है, इसको ढंग से पढ़िए, लंबा वीडियो मान के मत चलिए, आप एक एक तोड़ के करो ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप अलग करो और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अलग करो, ठीक है। तो आई प्रॉमिस यू, आई विल गिव यू डेली ए लेक्चर। थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा हो सकती क्योंकि ऑप्टिक्स के टॉपिक बहुत बड़े होते हैं बेटा, छोटे नहीं होते हैं। अभी इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तो वही पूरा टाइम खा जाता है, लेकिन ऑप्टिक्स में फ़ायदा ये है कि बिल्कुल क्लियर पता है क्या आना है, कोई टेंशन नहीं है। तो इस पे भी 3 न्यूमेरिकल मस्ट याद रखिएगा, इस पे भी, क्योंकि अब न्यूमेरिकल ज़्यादा आ रहे हैं बेटा, अब ऐसा नहीं आ रहा है, फिर तब आप रोगे क्या पेपर बन गया। चाहे तो किताब से उतार, चाहे बोर्ड से उतार, चाहे गूगल से उतार, लेकिन ये 3 करने ही करने हैं, ठीक है। तो आपसे फिर ये रिक्वेस्ट है, जब देखिए आपको अच्छा लगता हो तो उसको सब्सक्राइब करिए, नहीं लगता हो भैया आप अपने घर, हम अपने घर, ठीक है। हम अपने लेवल पे टू द बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं जितना हमको आता है, और उसके बावजूद यदि कुछ होता है तो अलग बात है। अब मैं कहूँ कि मैं ही फिजिसिस्ट हूँ तो मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, मैं केवल फिजिक्स की धूल निकालना जानता हूँ।
तो इसलिए तमीज़ से पढ़िए, ठीक से पढ़िए, और कहीं कोई ट्यूशन व्यूशन भागने की कोई ज़रूरत नहीं। अब क्लासेस शुरू हो गई हैं, मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगा तो हम केवल क्वेश्चन पे बात करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।